Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will discuss about the various contributions made by scientists at their times in microbiology. So without wasting any time, let's begin. So guys, this entire video is made keeping in mind the questions that is prevalently asked in your NEET PG exam, in NEET UG exams, also for exams for NEET MDS. These are the basic names of some scientists that is prevalently asked when you are studying microbiology courses also. Now the first scientist is your Girolamo Fracastoro. In the year 1546, he has given us the theory of contagious diseases. After him came Zacharias Janssen in the year 1590. So he discovered first microscope. Basically he was not a scientist, he was used to work on a optical shop. Okay, इनका काम था ऑप्टिकल्स को प्रिपेयर करना, चश्मे वगैरह प्रिपेयर करते थे ये, लेकिन उन्होंने जो है एक्सीडेंटली जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किया था, which was later on a very successful invention, जिससे कि बाकी साइंटिस्ट को बहुत हेल्प हुआ था उनके माइक्रोस्कोपिक कामों को करने में. Next comes a very prominent name. He is your Francisco Redi. So what did he do? इन्होंने जो एक popular notion था, ठीक है, spontaneous generation. This spontaneous generation is nothing but it was a hypothesis or a theory you can say that was given by Aristotle and the scientist जो उनके साथ agree करते थे कि जो एक living organism की originate होती है, origination of a living organism, it could be spontaneously, like it could be from a non-living matter also, but that was not the case. So he strongly opposed it. Along with him other scientists like Louis Pasteur, उन्होंने भी oppose किया था spontaneous generation को. उन्होंने ये बोला था जो एक non-living matter है वो कभी भी एक living matter को arise नहीं कर सकता है, ठीक है. Only the living organisms can give birth to a living matter. Okay, he is also known as father of modern parasitology and the founder of experimental biology. Is this side clear? So now comes Anton Phillips van Leeuwenhoek. He is known as the father of microbiology and in 1676 discovered bacteria, okay, and he named those small particles as animalcules. इन्होंने जो है फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था माइक्रोस्कोप में. Later he also contributed to advance the disciplines of bacteriology and protozoology, that is study of bacteria and study of protozoa. ये भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो spontaneous genesis के against थे. He has also challenged that theory. He also proposed that living organisms, they are coming from living matter only, living substances only, and not from non-living substances. In the year 1796, Sir Edward Jenner, who was an English physician and scientist, he developed the vaccine or the world's first vaccine for smallpox. He is also referred to as father of immunology. इन्होंने क्या किया था, जो पॉक्स वायरस था, जो पॉक्स जिस पर्सन्स को हो रहे थे, वो उसका जो सेरा था उसको लेके जब वो इंजेक्ट कर रहे थे एक नए पर्सन को, ठीक है, अगर एक हेल्दी पर्सन को, तो उस पर्सन को उससे इम्यूनिटी मिल जाती थी, वो उस डिजीज़ को रेजिस्ट कर लेता था, उस वायरस से इन्फेक्शन को, जैसे वैक्सीन काम करते हैं. इन्होंने ये चीज़ देखा था. हालांकि आज के डेट में आप ह्यूमन को नहीं टेस्ट कर सकते, आज के डेट में इवन एनिमल टेस्टिंग इज़ बैंड, ओके, बट एट दैट टाइम जो ज़्यादातर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे वो क्या करते थे, ह्यूमंस को ही टेस्ट करते थे. सो his discovery of vaccine, his discovery of smallpox has saved millions of life. और इसके बाद से जो है वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो prevalently start हो गया. तो most of the viral diseases, okay, even in fact bacterial diseases, okay, now they are also cured by vaccination process. So he is the father of vaccinology also. Now the next scientist in the year 1850 was a Hungarian physician, Ignaz Semmelweis. He was one of the first pioneer
जो कि एंटीसेप्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने फॉर फिजिशियंस। ठीक है, क्या होता था कि हैंड वॉशिंग वाज नॉट अ वेरी फेमस रूल। ओके, लाइक हैंड वॉशिंग का जो बिफोर एंड आफ्टर ईच मेडिकल एग्जामिनेशन और ईच एक्सपेरिमेंट यू नीड टू वॉश द equipments, you need to wash your hands properly। ठीक है, ये हैंड वॉशिंग का जो थिंग है, इवन टुडे लाइक for every other campaign of the government it is told that yeah, you need to wash your hand, the children need to wash their hand, okay, before eating you need to wash your hand। so ये जो entire criteria था कि maximum diseases हम रोक सकते हैं अगर हम simple hand wash करें तो। ठीक है, so basically जो postmortem fever होता था after surgeries and all, so he has given this thing that yeah, you need to wash the hand, that is the policy। okay, antiseptic policy इन्होंने create किया था। मैंने ये भी पढ़ा है कि इनका जो तब के टाइम में जो बाकी जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने इनका बहुत मजाक उड़ाया था बिकॉज दे डिडंट थिंक दैट वॉशिंग हैंड वाज एनी नेसेसिटी, बट या उनका जो ये पॉलिसी था दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल वन, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इरेडिकेशन हुआ था द लेवल ऑफ डेथ्स में, पोस्टमार्टम फीवर्स में, सब में जो है अमाउंट डिक्रीज हुआ था। सो दैट वाज अ वेरी व्हाट यू से इम्पॉर्टेंट पॉलिसी दैट वाज गिवन बाय हिम। In fact, during the corona time also, we were always asked to keep ourselves protected by washing our hand frequently, sanitizing properly, sanitizing whatever we touch, and in fact to wear masks always। ये चीज़ पहले से होती आ रही है, लेकिन हम लोगों को जो है बार बार हमें जब भी हम लोगों पे कोई अटैक होता है, ऐसे जब डिजीज़ेस का स्प्रेड होता है टू अ पेंडेमिक लेवल, ओनली एट दैट टाइम पीपल रिकॉग्नाइजेस दिस थिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट या मोस्ट ऑफ अस they are very much like ignorant towards these little things, but these are very important to lead a very good lifestyle। maximum disease जो है contagious होती है, मैक्सिमम डिजीजेस जो है हैंडशेक से हो सकता है, आपके कुछ खाने से कंज्यूम से फूड बॉर्न डिजीजेस होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है, लेकिन जो है आपका अगर हैंड प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि हैंड को आप मैक्सिमम टाइम हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो बेस्ट रहे। नेक्स्ट कम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, ही इज नोन एज the father of modern microbiology, Sir Louis Pasteur। He was a French chemist, okay, and later on he became a microbiologist, जो एक सबसे first और important finder थे microbiology के branch के। He was the first one who coined the term microbiology for the study of organisms of microscopic size, जो हम naked eye से नहीं देख सकते, उस organism की study को इन्होंने microbiology का नाम दिया था, और इनका innumerable contributions है to this field। So सबसे पहले जो मैंने पहले भी बोला है, he has disapproved the theory of spontaneous generation of diseases जो theory था, he has again disapproved that one, and he postulated the germ theory of diseases। इन्होंने ये बोला था कि जो डिजीज़ है, ठीक है, वो कोई बैड एयर या वेपर से जो है वो नहीं स्प्रेड होती है, ये बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एयर में, उससे ये चीज़ स्प्रेड होती है टू द मास पीपल। अगर कोई चीज़ में कंटेमिनेशन ना हो, अगर कोई चीज़ में डर्टीनेस या कंटेमिनेशन ना हो, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कभी डेवलप नहीं हो सकते हैं। He also gave the principles of fermentation for the preservation of food। ठीक है, उनको fermentation की study में बहुत ज़्यादा interest था, and in fact he was also responsible for a principal industry of France, that is manufacture of wine and beer। wine and beer की जो industry थी, ये वहाँ पे भी जो थे principal position में थे। He has also described the method of pasteurization of milk and wine। ठीक है, so pasteurization the word है that comes from his surname। इन्होंने जो है रेबीज, फाउल कोलेरा, देन एंथ्रैक्स, ऐसे जो डेडली डिजीजेस थे उनके अगेंस्ट जो है वैक्सीन भी प्रिपेयर किया था।
इनके टाइम में जो है फर्स्ट टाइम लिक्विड मीडिया कंसेप्ट सामने लाया था कि हम जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं, हम लोग कोई आगार लेते हैं जहाँ पे हम लोग उसको कल्चर करते हैं, ठीक है, कोई लिक्विड मीडिया लेते हैं, तो ये जो एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ठीक है, प्रिपेयर करके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, ये जो कंसेप्ट था, ये चीज़ भी इन्होंने जो है फर्स्ट लाया था. ओके, ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ पास्च्योर इंस्टीट्यूट दैट इज सिचुएटेड इन पेरिस. If you have any question, then please comment in the comment section. I will definitely answer to all the queries. Now comes Joseph Lister. Okay, he is known as father of antiseptic surgery. ठीक है, he was a British surgeon, medical scientist and an experimental pathologist. ठीक है, he was a pioneer of antiseptic surgery. ठीक है, इनका एक फेमस जो था that he made a machine. Okay, जो machines जो थे, he spread carbolic acid on them. ठीक है, वो जो अपने machines को यूज़ करते थे वहाँ पे उन्होंने carbolic acid को स्प्रे किया था to get rid of the airborne germs. Okay, during surgery. तो जब भी सर्जरी होता था उसके environment को antiseptic रखने के लिए he was the first one जिन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था. ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है पॉल एलरिच. सो ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज. ओके, ही वाज अ जर्मन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट. सो हिज वर्क वाज बेसिकली ऑन द एंटी डिप्थेरिया सेरा. ठीक है, also one of the best was his discovery of salvarsan in the year 1909. Okay, that was for the treatment of syphilis disease. ठीक है, जिसको मैजिक द फर्स्ट मैजिक बुलेट भी बोलते हैं. तो इसके बाद से जो है जो केमोथेरेपी, कैंसर की जो ट्रीटमेंट की केमोथेरेपी यूज़ करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ले डाउन किया था. ठीक है, सो बेसिकली व्हेन द क्वेश्चन कम्स पॉल एलरिच के बारे में, तो वो क्वेश्चन आता है आपका सिफिलिस से रिलेटेड, आइदर एंटी डिप्थेरिया के से रिलेटेड, और जोसेफ लिस्टर से आता है क्वेश्चन, तो वो एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड कार्बोलिक एसिड इसके ऊपर ही आती है. ठीक है, so guys, while preparing these slides I thought of including cause postulates also because that is equally important. Now see, he was known as the father of pathogenic microbiology. ठीक है, और उससे भी ज़्यादा important इनका postulates पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने postulates में जो है बहुत अच्छे से describe किया था चारों criteria को. First thing, see the diagram and then try to understand with me. जो suspected causative agent है, ठीक है, it must be absent from all the healthy organisms but must be present in all diseased organism. ठीक है, मतलब जो पैथोजन है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, हर एक जो डिजीज जिस ऑर्गेनिजम्स पे डिजीज स्प्रेड हो रहा है, जो पेशेंट हो रहे हैं, उनमें वो चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म है उन लोगों में जो है ये पॉजिटिव एजेंट का प्रेजेंस होना नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये पॉजिटिव एजेंट्स ओनली एंड ओनली मस्ट बी प्रेजेंट इन द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म. पॉइंट क्लियर है आपको? क्या है नेक्स्ट पॉइंट पे वो ये कहते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट है, जो पैथोजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं डिजीज ऑर्गेनिज्म से, और उसे हम प्योर कल्चर में जो है वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. So the pathogen can be isolated from the diseased host and can be grown in a pure culture. Clear? Next point. Now see, the third point, it says that the cultured agent must cause the same disease when inoculated into a healthy susceptible organism. मतलब जो अभी ऑर्गेनिज्म प्योर कल्चर में हमने क्या किया, हमने एक डिजीज ऑर्गेनिज्म से जो है उस चीज़ को लिया. ठीक है, हमने जो पॉजिटिव एजेंट को है वहाँ से हमने आइसोलेट किया. आइसोलेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम उसे इनोकुलेट कर रहे हैं, हम इसे इंजेक्ट कर रहे हैं. कहाँ पे? एक हेल्दी ससेप्टेबल, हेल्दी रिसीवेबल ऑर्गेनिज्म पे. ठीक है, और वो जब उस ऑर्गेनिज्म पे जा रही है तो उस ऑर्गेनिज्म को भी, जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म को भी, उसे वो डिजीज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. और उस ऑर्गेनिज्म को जब वापस से वो डिजीज होता है, जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म को वो डिजीज होता है, उससे भी हम अगेन जब रीआइसोलेट करेंगे तब हमें वो डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म या डिजीज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है वो हमें मिलनी चाहिए. बट गाइस, देयर वाज अ एक्सेप्शन. ठीक है,
हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करती है। जो प्योर कल्चर मीडिया है, मैं इसके बारे में भी आपको आगे पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज प्योर कल्चर एंड ऑल। ओके, सो इसमें क्या है, जैसे लिप्रोसी है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे जो है, ये जो है ग्रो नहीं करती है आपके प्योर कल्चर में, जो लेबोरेटरीज में, बट इट इज कॉजिंग योर डिजीजेस। तो हम लोग इसे ना, इस पोस्टुलेट्स को टू डिटरमाइन एट अ सर्टेन लेवल इट इज़ फाइन, बट या इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू एंड इट इज़ नॉट गोइंग विद ऑल द थ्योरीज। मतलब हम इसको जनरलाइज एक पोस्टुलेट नहीं मान सकते, बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया से ये जो है अपने आप को, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते कम्प्लीटली। सो आई होप यू हैव Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.